We Hello. Hi, how Hello, are how you? are you? I'm fine. How are I'm you good. doing? Yeah. I'm good. So tell me I'm what doing well. yeah, so tell me what's keeping you busy these days? मतलब लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए? मैं 26 तारीख को एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ अपने गार्डन से हम्म और ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सर्ट होने वाला है। इससे पहले हम्म हमने ये कॉन्सर्ट एक बार अपने छत से प्लान करा था और हम्म बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। लोगों ने कहा कि वो कुछ समय के लिए भूल गए हम्म थे कि हम्म क्वारंटाइन चल रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है। सो वो कॉन्सर्ट कर हम्म रहा हूँ मैं और हम्म 4 बजे मैं टिकटॉक से लाइव जाऊंगा। नौ हम्म 6 बजे मैं न्यूज़ 18 के चैनल्स पे लाइव आऊंगा और या 7 बजे मैं यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव आऊंगा। सो मैं हम्म कुछ म्यूजिशियंस के साथ हूँ और हम लोग साथ में हम्म तैयार कर रहे हैं शो एक और उसकी तैयारियां चल रही है। सो इस वक्त ऑनेस्टली आई एम completely involved in jamming and preparing my या new concert for you guys. या दैट्स ग्रेट दैट्स नाइस टू हियर सो टेल मी व्हाट्स द Thank you. वन थिंग कि जो आपको करना है राइट आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स Right after the lockdown, ends like the ये first तो thing that सोचा you नहीं want मैंने, to do. बट फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज आई वांट टू गो बैक टू बॉम्बे, मीट माय फ्रेंड्स एंड hug them and tell them that let's make some music, Hmm. let's record, let's do Yeah. something interesting. Yeah. And tell me how fortunate do you feel to be, back home in Dehradun, मतलब ये लॉकडाउन के वक्त. आई फील वेरी वेरी लकी। मैं इस वक्त बॉम्बे होता तो शायद बहुत परेशान हो जाता। मैं घर पे हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और Hmm. आई हैव एवरीथिंग हियर टू कीप मी बिजी म्यूजिकली और आई एम जस्ट वेरी वेरी लकी दैट आई एम हियर राइट नाउ। Yeah. And looking at the current scenario जो हम क्राइसिस में है जहाँ लोग घर जी। में घर के बाहर जा नहीं सकते आ नहीं सकते विच इज दैट वन सॉन्ग जो आपके दिमाग में आता है ये सिचुएशन को देखकर. हम्म, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, हम्म बाहर से कोई अंदर ना आ सके, हम्म हम्म ऐसा हो तो ना 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 ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉन्ग फॉर राइट नाउ। Right, yeah, right. It's the most appropriate song. Also, last year has been tremendously great for you. You delivered some chart buster tracks, जो अभी भी हम सुनते हैं लूप पे हमारे प्लेलिस्ट पे. So tell me, how सो do स्वीट, you थैंक यू। look at it in retrospect? I think I'm living a destiny. I have my destiny to give a Hmm. message out there, message of love, message of Hmm. unity, message of togetherness, message of Hmm. humanity. एंड जब तक मैं उस मिशन पे हूँ तब तक आई थिंक it will always reflect through my work, and Yeah. I just hope that I can always be able to affect the lives of people and affect the lives of so many people who sometimes feel depressed in our country or feel sad in our country. I Yeah. am that face that I will always come and tell you that don't worry, it's gonna get fine और सब ठीक हो जाएगा। Hmm. Yeah. Yeah. Also, you're collaborating with Honey Singh. I read that you're collaborating with him and you worked with a song with him 3 years ago जो अभी रिलीज होने वाला है. So why the Yeah. long wait for fans? आई थिंक वी वर ऑल Hmm. स्पेक्यूलेटिंग कि Hmm. हर चीज का एक वक्त होता है और Hmm. बीच में हनी भी रिसेंटली ही वाज not working too much, he was not releasing too much music in between, Hmm. and now he's back and he's back with a bang, and now it's time for us to do Yeah. that song that we had planned. Yeah. It's going to be very very special collaboration. Yeah. Hmm. Yeah. And tell me which song of yours do you consider to be the big break or a turning point in your career? I think every song has played that part in my career. I have had Ek Mulaqat as my first song, which was such a big Hmm. introduction of my voice to the country, to the world. Hmm. फिर उसके बाद जिंदगी कुछ तो बताए एक ऐसा बेंचमार्क था मेरी लाइफ में। फिर Hmm. उसके बाद मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी हमनवा मेरे, जिसने मेरे फेस को एक बहुत अच्छा डायमेंशन दिया। लोगों को पता लगा कि ये सिंगर है एंड ये ऐसे दिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने तुम ही आना मर जावा का एक बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फैल गया।
फिर उसके एग्जैक्टली। बाद एक छोटा सा सॉन्ग मैंने कबीर सिंह एक फिल्म में गाया था, हम्म। तुझे कितना चाहें और हम, और वो स्टेज पे करा मैंने. दैट वीडियो वेंट वायरल एंड सडनली नाउ आई एम या हियर. या just as you mentioned कि हम नवा मेरे was also one of the turning points in your career. A lot of your fans have या requested to you to sing that song. या श्योर. Yeah. कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया. जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया. हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा. हम्म, हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना. फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना. थैंक यू. Beautiful. Thank you so much थैंक यू. for this. So, या श्योर. apart from working on Hindi songs, you have sung songs in multiple languages. So, I want to know how difficult is it for you to learn a new language and then actually sing in that language? शुरू शुरू में था थोड़ा डिफिकल्ट, बट फिर बाद में थोड़ी Hmm. आदत पड़ गई. Hmm. थोड़ा उसका एक प्रोसेस है. अभी मैं एक बार में लैंग्वेज नहीं सीख सकता, बट हाँ मैं ये मन में सोच सकता हूँ कि बात क्या कही जा रही है, और नीचे जो बात मुझे एक्चुअली उस लैंग्वेज में कहनी है Right. उसको रट लूंगा. उसको Hmm. किस तरह से उसका डिक्शन क्लियर होगा, मैं उसको प्रॉपरली रट लूंगा एग्जैक्टली हाउ इट इज Hmm. सेड. I will say it a Hmm. few times and I'll mug it up. And then when I'm Hmm. singing it, I'm gonna think कि उसका मतलब क्या है ऊपर, और वो मतलब सोच करके मैं वो वाली लाइन Huh. गाने की कोशिश करता हूँ, तो सब कुछ सही बैठ जाता है. Yeah, that's great. And I'm a So, fast learner. tell me, yeah, that's nice. So, you have worked on a lot of songs, but which has been the most difficult song for you to work on? मतलब personally, कौन सा ऐसे difficult song रहा है आपके लिए? देखिए, गाना तो जब मैं फर्स्ट डब करता हूँ उसी वक्त काफी हद तक समझ में आ जाता है लोगों को, पसंद भी आ जाता है लोगों को. लेकिन हम्म। नेचर थोड़ा मेरा परफेक्शनिस्ट टाइप का नेचर है. तब हाँ। तक तब तक मजा नहीं आता जब तक घर पे आकर के काम करके घर आऊं और घर आके चैन से सो जाऊं, तो मुझे हम्म। लगता है कि डबिंग अच्छी करी. बट मुझे वो या। चैन ही नहीं मिलता. मैं डब करके आता हूँ, फिर मुझे लगता है ये मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ. तो पूरी प्रोसेस अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है. एंड आई कीप वर्किंग ऑन द सॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रिलीज के आखिरी दिन तक मैं उसके ऊपर काम कर रहा था. So हाँ. I think it's the entire process is difficult. Sometimes I put in a But I lot of think energy. but I think that process helps or you creating some chartbuster songs for us. Yes, I think वो ही एक है Yes. जिस वजह से शायद आप लोग को इतना पसंद आता है मेरा काम. Right. And growing up, आप किस musicians या singers को अपने inspiration या idol मानते थे? रफी साहब, किशोर दा, हम्म. नुसरत साहब, लता ताई, हम्म. आशा ताई. आई थिंक हम्म. ये 5 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के हम्म. लिए, जिन्होंने बॉलीवुड साउंड को इतना बड़ा डायमेंशन और डायनामिक दिया है. एंड हम्म. ये 5 लोग अपने आप में एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, जिनसे हम्म. मैं आई हम्म. थिंक दे आर एवरीथिंग फॉर मी म्यूजिकली. Yeah. Yeah. And you are a successful singer now, but when you started out in the industry, I want to know what sort of hurdles आपको face करने पड़े to reach a place where you have everything now, right? You are a successful singer now. हर्डल्स नहीं थे. हाँ, हर्डल्स हो सकते हैं रास्ते में. काफी सारी ऐसी मोमेंट्स आती हैं, अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, हम्म. पर हम्म. इधर यू विन इट और यू लर्न समथिंग. एंड हम्म. बहुत सारी चीजें सीखा मैं, अपनी वॉइस के बारे में बहुत हम्म. सारी चीजें सीखा. मुझे लगता है अगर फेम और सक्सेस मुझे पहले मिल जाती तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता जितना मैं आज अच्छा गाता हूँ. हर चीज ने मुझे पकाया है, हम्म. हर चीज ने मुझे सिखाया है.
And I think coming from there to here, I think it's beautiful. I would not want it any other way. Coming from Yeah. a small town, making your own way, हर वक्त एक नए गाने पे वर्क करना, इतना प्यार मिलना, फैंस का प्यार मिलना, मीडिया से प्यार मिलना इतना ज्यादा, आई थिंक ये अपने आप में मेरे लिए एक ब्लेसिंग रहा है, और आई वुड नॉट वांट इट एनी अदर वे. Yeah. And you know, in the last few years, हमने देखा है कि a lot of old tracks are being recreated in the industry. I want to know your point of view on the entire recreation trend जो अभी चल रहा है बॉलीवुड में. देखिए, जब तक आप उस गाने को एक रिक्रिएशन की तरह करेंगे तब तक वो थॉट ही राइट नहीं है. पर हाँ, जब भी आप किसी रिक्रिएशन को एक रीसेलिब्रेशन की तरह करो, अगर आप किसी अपने फेवरेट गाने को सेलिब्रेट करो, एक ऐसे गाने को जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप बचपन से सुनते आए हो, जब आपको मौका मिलता है उस सॉन्ग को रीफ्रेम करने का, उस सॉन्ग को गाने का, उस सॉन्ग को सेलिब्रेट करने का, जिन लोगों ने उस गाने को बनाया है उन लोगों को सेलिब्रेट करने का जब आपको मौका मिलता है, सो दैट्स द काइंड ऑफ रिक्रिएशंस आई एम इनटू. और Yeah. मैं सिर्फ वो रिक्रिएशंस करता हूँ जो मेरे बहुत ही पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं. जैसे हम्मा सॉन्ग मेरा बहुत करीब है दिल का. जब मुझे मौका मिला तो मैंने दिल से गाया उसको, इसलिए लोगों को इतना पसंद आया, और कभी उस पे इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं मिला. इनफैक्ट सारी रिक्रिएशंस जिन पे मैंने वर्क करा अभी तक, कभी टचवुड कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला फैंस का, क्योंकि बहुत ही करेक्ट इंटेंशन से मैं उसको गा रहा हूँ, बहुत ही करेक्ट इंटेंशन से मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ. सो आई थिंक जब तक आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो एक पुराने गाने को, देयर इज नो हार्म. बट जैसे आप कुछ पुराना भूल करके कुछ नया बनाना चाहते हो किसी पुरानी चीज में, दैट थॉट आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली दैट थॉट. Yeah, that's true. As you mentioned, you know, criticism आपको कभी नहीं मिले आपके songs को जो आपने recreate किए. There was this song recently, मसक कली, जिसका 2.0 वर्जन को बहुत heavily criticize किया गया था. मतलब जो ओरिजिनल कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट होते हैं, उन्होंने बोला था कि you know, why did they somewhere spoil the original track as well? So you know, as musicians, what efforts do you take तो यू नो कि कहीं बिगड़ ना जाए ओरिजिनल ट्रैक का भी, यू नो द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल ट्रैक. देखिए, एग्जैक्टली जैसा मैंने भी आपको बोला, जितनी बार जब आप कोशिश करते हो कुछ नया बनाने की एक ऑलरेडी बड़े गाने से, तो हो सकता है कि वो हो सकता है आप उसके आगे ना उसको निभा ना पाओ. लेकिन जब भी आपके दिल के करीब कोई बहुत जेन्युइनली दिल के करीब सॉन्ग है, जो उसको आपने पूरी लाइफ सुना है, पूरी लाइफ सेलिब्रेट करा है, जब भी आप उसको गाओगे, आप दिल से गाओगे या आप दिल से उसे बनाओगे. जब आप दिल से उसे बनाओगे तो दिल तक हमेशा जाएगी. और दैट्स व्हाट आई फील कि whenever you have your intention has to be right with the song. If your intention is right, I feel it will never backfire. Yeah. And I wanted to ask you, like, what's the one thing that you would like to change about the music scene currently जो है हमारा in the industry? आई थिंक ऑलरेडी म्यूजिक सीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. कहाँ से कहाँ आ गया है म्यूजिक, क्या रीच हो गया आज म्यूजिक की. और पहले थोड़ा स्टीरियोटाइप कल्चर रहता था म्यूजिक में, पर अभी बहुत ओपन माइंड के हो चुके हैं डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिक लेबल्स. नई साउंड पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं. आई थिंक म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रखा है जब एक्चुअली टैलेंटेड लोग अपना काम कर सकते हैं, और they can enjoy it, and they can enjoy this whole celebration of the fact that we still have music, the only form of magic which ever exists, and you have felt it in close. And we guys are almost getting to do that the entire day. We are lucky. Yeah, right. And what's the, you know, one piece of advice that you wish कि किसी ने आपकी younger self को दी होती? अगर यंगेस्ट सेल्फ पे जाओ तो आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ कि बदमाशी ज्यादा नहीं करना. मैं बहुत बदमाश था जब बहुत छोटा था. पर आई थिंक जो मेरी जर्नी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस जर्नी में. मेरे अप्स भी मेरे लिए अप्स रहे हैं, और मेरे लिए डाउन्स भी मेरे लिए अप्स ही रहे हैं. मेरे डाउन्स ने मुझे बहुत सिखाया, और अगर वो सब मैं अवॉइड कर देता तो शायद मैं इतना सीख करके अभी मैं इतना आई वुड नॉट हैव बीन एज गुड एज आई एम. और अगर कल को मुझे फ्यूचर में जाकर के खुद को एडवाइस देनी है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं सिर्फ बोलूंगा कि just remember your beliefs, अपनी roots को याद रखना, and you will never fall. Yeah, you're right. A lot of your fans have this constant request कि आप तुझे कितना चाहने लगे हम गाइए. ठीक है, थोड़ा सा गाऊंगा, क्योंकि बाकी जो मैं गाना है वो गाऊंगा 26 तारीख को, जो मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ घर, उसमें गाना चाहूंगा.
वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे। बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे गम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thanks a lot, Jubin, for थैंक यू joining सो in, मच। यस, fulfilling थैंक यू आपके सो fans मच। के request and answering my questions. It was my pleasure talking to you. It was my pleasure too. Please take care of Yeah. yourself, be good, give my Yeah. love to family, and stay safe. And Yeah. Stay 26th safe. April, 4 p.m. TikTok, Hmm. 6 p.m. News 18, 7 p.m. Facebook and YouTube, all my official Hmm. channels. कि हम लोग एक कॉन्सर्ट करेंगे. It will be from my Yeah. house, it will be from my garden. I would like to invite you and your family, and I would like to invite Sure. all your listeners who are listening to this. Yeah. Thank you so Yeah. much. Sure. See you guys soon. Yeah. Bye Guys, bye. do join it. Yeah. Bye. Yes. Thank